of Geetharatna International Business School, extend a warm and heartfelt welcome to one and all present here, as we come together to celebrate a tradition that transcends border, generation and belief, International Yoga Day. Today, in harmony with sun and spirit, we embrace yoga, not just as an exercise, but as a way of life, a journey from chaos to calm, from breath to being. We are also delighted to share that our institution has officially registered to organize Yoga Sangam as part of the Government of India's initiative, International Day of Yoga 2025. Declared by the United Nations and championed by India since 2015, International Yoga Day is celebrated every year on the 21st of June, reaffirming the timeless relevance of yoga in promoting physical, mental and spiritual well-being. The theme of this year's celebration is Yoga for Self and Society, a beautiful reminder that when we align ourselves, we uplift not only our inner world, but also the world around us. Allow me to take a moment to acknowledge the visionary institution that makes all of this possible. Geetharatna International Business School, an institution that prides itself on empowering students with knowledge, skills and platform to excel. Established in the year 2004, GIBS is affiliated with Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, and is approved by All India Council for Technical Education and Bar Council of India for law programs. The institute offers a variety of courses including MBA, MBA International Business, MBA Integrated, BBA Honours, Integrated BA LLB Honours, BBA LLB Honours and LLB. GIBS has consistently been recognized for its excellence, accredited with an A grade by NAAC in its third cycle, rated A+ by the State Fee Regulatory Committee under the NCT of Delhi, earned the highest grading of A by the Joint Inspection Committee of the Government of NCT of Delhi and GTS IPU since 2013, rated grade A by the Academic Audit Cell of GTS IPU since 2012. And now with deep reverence, I take this moment to introduce the guiding light of today's celebration, our esteemed guest, Yogacharya Rakesh Gandotra, who embodies the grace of wisdom of yogic practice in every breath. With him, we also have Harsh Kakkar sir and Renu Agarwal ma'am. A dedicated practitioner and a teacher of yoga for over 23 years, he has served as a senior instructor with the Bharatiya Yoga Sansthan for 15 years, currently holding the position of Zilla Mantri, and has been associated with the Art of Living Foundation for 17 years, conducting Level 1, Level 2 and Sanskar Kendra sessions. A certified postgraduate from Yoga Alliance to USA and an active member of the India Yoga Association, he brings with him a wealth of experience grounded in tradition and refined through years of community engagement. His contributions span a wide spectrum from conducting therapeutic shivers for diabetic, cardiac and asthmatic patients to leading yoga and pranayama sessions for over 500 CRPF personnel and conducting programs for inmates and Rohini jail. He has also facilitated stress relief workshop for corporate houses like the Tata Group and has played a key role in events organized under the Ministry of Ayush. In every initiative, his vision resonates with this year's theme, Yoga for Self and Society, reminding us that the practice of yoga begins within, but its impact flows far beyond. With years of experience in teaching yoga, guiding meditative sessions and touching countless lives, Sir stands as a living example of harmony between body, mind and soul. We are truly honored to have you here, sir. As a humble gesture of gratitude and reverence, I request our director, sir, to kindly come forward and present the plant sapling to our respected guests. Now with this, I request sir to please take over the stage and let us through the session of yoga and mindfulness. Please welcome sir with a big round of applause. सभी अपने अपने आसन पे बैठ जाएंगे पहले।
मैम ने जैसे कि सारा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है हमारा, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सभी को पता है, आज हम सभी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। योग भारतीय संस्कृति की विश्व को दी हुई एक अनुपम देन है। योग से हमें हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है और साथ ही साथ हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम हर साल मनाते हैं, ये 11वां है, पर इस बार खास बात ये है कि ये एक विश्व एक स्वास्थ्य के लिए मनाया जा रहा है। मतलब हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ सभी लोगों के, विश्व के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हम खुद तो योगा करते ही हैं, पर हम जब दूसरों के साथ मिलकर करते हैं तो उनको भी लाभ पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है और इसीलिए हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। तो आइए मिलकर योग की शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा मंगलाचरण के द्वारा, 4 पंक्तियों का मंगलाचरण है, आप सब सुनेंगे, एक पंक्ति मैं बोलूंगी, देन यू विल रिपीट। इसके लिए सभी लोग आंखें बंद कर लें, हाथ ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा वगैरह आप सामने देख सकते हैं और कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। एक बार लंबी ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद मंगलाचरण को रिपीट करेंगे। ओम ध्वनि के लिए श्वास भर लें। कोमलता से आंखों को खोल लें, दोनों हाथों को जोड़ें और अपने अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे। अभी हम योग की ओर चलते हैं। पहले जैसे आप वार्म अप बोलते हैं उसी तरह सूक्ष्म क्रिया है, उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो नहीं समझ में आए आप सामने देख सकते हैं। कमर मीन्स गर्दन, ठीक है। हाथों को रखेंगे कमर पे, सांस को निकालते हुए आगे की ओर सिर को ले जाना है, झुकाना है। आपकी चिन चेस्ट को टच करे, इतना झुकाना है, पर धीरे धीरे करना है। सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। इसी को एक बार और रिपीट करें। सांस भरें, सांस निकालते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। वापस आए। अब सांस को बाहर निकालते हुए अपनी गर्दन को ले जाएं राइट साइड में, दाएं कंधे की तरफ झुकाना है, जिससे कि आपका राइट वाला कान आपके राइट कंधे को टच करे, कंधे को ऊपर नहीं उठाना है। सांस भरते हुए बीच में आ जाएं, सांस निकालते हुए दूसरी तरफ लेफ्ट साइड ले जाएं। हाँ, ले जाओ, कान को कंधे के पास लेके जाओ। सांस भरते हुए वापस। इसी को एक बार और रिपीट करें, राइट से भी और फिर लेफ्ट से भी। वापस आ जाएं। अब अपनी गर्दन को घुमाना है राइट साइड में, राइट साइड में पूरा ले जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं। सांस भरते हुए बीच में आए, श्वास को बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड, सिर्फ मोड़ना है आपको, राउंड नहीं घुमाना है। वापस बीच में, और इसको फिर से एक बार रिपीट करें। राइट साइड, सांस लेते हुए बीच में, लेफ्ट साइड, वापस। अब चारों ओर घुमाना है। पहले नीचे ले जाएं और क्लॉकवाइज घुमाएं, राइट टू लेफ्ट, नीचे से राइट साइड में जाते हुए
थोड़ा गोल बनाना है। 2 बार करें इसको और फिर 2 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, इसी के ऑपोजिट। अब आपको करनी है कंधों की क्रिया। दोनों हाथों को नीचे ले आए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को राइट लेफ्ट से ऊपर की ओर ले जाना है। इस तरह सामने देख लें, आपकी जो हथेलियां हैं वो बाहर की ओर रहेगी, इस तरह से अंगूठे भी मिला के रखो। ये 5 उंगलियां हमारे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये अगर मिला के रखते हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए हाथों को, उंगलियों को मिला के रखना है। सांस को बाहर निकालते हुए नीचे लाएं, एक बार और रिपीट करेंगे। फिर से सांस भरें, ऊपर लेके जाए, खिंचाव के साथ खींच के ले जाना है। आपको यहाँ पे शोल्डर पे पेन आना चाहिए, बहुत खिंचाव आना चाहिए। फिर एक बार लेके जाए नीचे वापस। अब अपने हाथों की उंगलियों को कंधों पे रखें और अपनी एल्बोज को मिला के घुमाना है राउंड, आगे से पीछे 2 से 3 बार। ये छोटी छोटी आप जो कर रहे हैं सभी आपको बहुत सिंपल सी और बहुत लग रही होगी, पर आपके कंधे और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है हाथों का, वो बहुत इससे प्रभावित होता है। और इसी को फिर आप ऑपोजिट कर लें, आगे से पीछे अभी आपने घुमाया, अभी आप पीछे से आगे लें। 2-3 बार आगे से पीछे, 2-3 बार आपको पीछे से आगे। वापस आ जाए, हाथों को नीचे ले आए, रिलैक्स। एक कटी संचालन, दोनों पैरों को 1 फुट तक खोलें, जितना आपका मैट है ना उतना खोलना है आपको। और दोनों हाथों को सामने की ओर ले आए, एक दूसरे के पैरेलल आपके हाथ हैं, कंधों के सीधे, ऊपर नीचे, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। अब ले जाएं अपने दोनों हाथों को राइट साइड में, राइट वाला हाथ पीछे और दूसरा हाथ आपके शोल्डर पे। सांस भरते हुए वापस आए और फिर दूसरी ओर लेफ्ट साइड में भी। अब इसको थोड़ी स्पीड में करें, दाएं और बाएं घुमा लें। कोशिश करें आपकी टांगों को दबा के रखें, सिर्फ कमर को आपको पीछे ले जाना है, कमर और गर्दन। करो 2-3 बार स्पीड के साथ और। चलिए वापस आ जाएं, हाथों को नीचे ले आए। अभी एक घुटने की क्रिया करेंगे, पैरों को खोल लें अपने कंधों जितना ही और हाथों को ले आए सामने कंधों की सीध में, हथेली नीचे की ओर। अब सांस को निकालते हुए घुटनों को मोड़ते हुए इस तरह बैठेंगे, आधे बैठने की स्थिति में, चेयर पोजीशन में, जैसे चेयर पे बैठे हो आप, इस तरह से आप वापस ऊपर आ जाए। सांस लेते हुए ज्यादा नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा एक बार और करेंगे। सांस निकालते हुए नीचे जाएं, अभी थोड़ा होल्ड करें, रुके रुके रुके, बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाएं। ये हमने बहुत कम होल्ड करवाया है आपको, पर सभी अच्छा कर रहे हैं। अब आगे सर। Are you people enjoying this? Yes, sir. Okay, please continue. बहुत अच्छे से हमने सूक्ष्म क्रियाएं की। आसन करने से पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं, हमारे नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बन जाता है, हमारे जॉइंट्स खुल जाते हैं। तो आसन करने के लिए हम तैयार हैं। तो आसनों का आरंभ करते हैं। सभी आसनों का एक मूल आधार है ताड़। ताड़ का अर्थ है खजूर का पेड़। जैसे वो एकदम सीधा तना हुआ खड़ा होता है, इसी तरह से अपनी रीढ़ को हमने स्ट्रेचिंग देनी है। ताड़ के पेड़ की तरह आकृति बनानी। इससे क्या होगा, रीढ़ के सारे हमारे वर्टिब्रा खुलेंगे, उनमें जितनी नस नाड़ियां निकल रही है उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। हमें 2 इंच का फासला लेकर खड़े, 2 इंच का, ज्यादा फासला नहीं रखना। दोनों हाथ शरीर के साथ। अब भुजाओं को आगे कंधों के स्तर तक उठा लें। दोनों हाथों की उंगलियां ग्रिप कर लें आपस में। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर सिर की
की ओर से ऊपर ले जाएंगे और साथ साथ एड़ियां भी उठाएंगे। जिन्हें वेरिकोस वेन्स की शिकायत है या चक्कर आ रहा है या आर्थराइटिस की शिकायत है, वो एड़ियां ना उठाए, केवल भुजाएं ऊपर ले। एड़ियां ऊपर उठाकर पैरों की उंगलियों पर शरीर को संतुलित करना है। शरीर की स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा आसन, मांसपेशियों को दृढ़ करता है, शरीर को स्थिर बनाता है। एक बार एड़ियां नीचे ले आए, एक बार भुजाएं आगे ले आए, एक बार और अभ्यास करें। श्वास करते हुए भुजाएं धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, एड़ियां भी उठाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एड़ियां उठाने का प्रयास करें। केवल पैरों की उंगलियों पर शरीर को संतुलित करें। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब एड़ियां नीचे लाएं और श्वास निकालते हैं, भुजाओं को दाएं बाएं से वापस। रीढ़ में थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना, पैरों की मांसपेशियां मजबूत है। अगला एक बैलेंस का आसन है, वृक्ष आसन। वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ की तरह अंतिम स्थिति इसमें बने। इसमें भी जिसको आर्थराइटिस की शिकायत हो वो इसका अभ्यास ना करे, क्योंकि इसमें घुटनों पे, जोड़ों पे अच्छा जोर करता है। पैरों में 2 इंच का फासला रख लें। दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर स्थित रखना है, क्योंकि बैलेंसिंग करनी है। दृष्टि एक जगह पर अगर आपकी रहेगी तब आपका बैलेंस बनने में आसानी रहेगी। अब दाईं टांग को मोड़े, दाईं टांग को मोड़े, उसके पैर को पकड़कर उसका तलवा बाईं जंघा के अंदरूनी भाग पर रखें। कोशिश करें ऊपर से ऊपर ले जाकर मूलाधार तक ले। शरीर का संतुलन बनाने में, जागरूकता, एकाग्रता बढ़ाने में बहुत अच्छा आसन है। भुजाएं दाएं बाएं से वापस लाएं, दायां पैर सीधा करें, फिर सीधे खड़े हो, सामने एक पॉइंट पे दृष्टि रखनी है। बाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों से बाएं तलवे को पकड़ें, तलवे को बाएं दाएं जंघा के अंदरूनी भाग में लगाएं। ऊपर से ऊपर एड़ी को लाने का प्रयास करें, कोशिश करें परिधीयों पे मिल जाए। श्वास करते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, हाथ नमस्कार मुद्रा। भुजाएं खिंचाव में रहेगी तो अच्छा रीढ़ पर ज्यादा प्रभाव आएगा। भुजाएं दाएं बाएं से वापस और पैर सीधा। इन 2 आसनों में हमने रीढ़ की स्ट्रेचिंग करी है। रीढ़ का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। अब हम ऐसे आसन करेंगे, रीढ़ को पीछे की ओर और आगे की ओर मोड़े। पीछे की ओर के लिए एक अर्ध चक्र आसन, यानी हाफ व्हील पोज, आधे पहिए वाला आकार शरीर का बने। पैरों में 2 इंच का फासला कर लें, 2 इंच का, ज्यादा नहीं करना। इसमें भी कईयों को चक्कर आने की संभावना रह सकती है, रीढ़ हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे, चक्कर आने लगे वहीं पर रुक जाएंगे। या किसी को बीपी की शिकायत, हाई बीपी की शिकायत है, वो भी जरा ध्यान से करें। दोनों हाथ कमर पर रखें, बगल को पकड़ लें, अंगूठे पीछे, उंगलियां आगे की तरफ। गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर मोड़ें। सिर का पिछला भाग रीढ़ से लगाने का प्रयास करना है और गर्दन की मांसपेशियों में पूरा खिंचाव अनुभव करना है। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे झुकते जाएं। घुटनों का दबाव थोड़ा अंदर बना के रखेंगे, कईयों के घुटने आगे आ रहे हैं, घुटनों का दबाव अंदर बना के रखें और धीरे धीरे कमर से पीछे झुकते जाएं। रीढ़ में लचीलापन बनाने में, पीठ की मांसपेशियों को पुश करने में सर्वाइकल में बहुत लाभ है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। हाथ नीचे, सम स्थिति में विश्राम। आसनों के बीच में, खड़े हुए आसनों के बीच में सम स्थिति में विश्राम करेंगे, यानी पैरों में वही थोड़ा सा 2 इंच का फासला रहेगा। भुजाएं शरीर, हाथ शरीर के साथ। अब अगला आसन जिसमें रीढ़ को हम आगे की ओर झुकाएंगे। इसमें हमारा हाथ कमर वाले भाग से, बगल वाले भाग से शरीर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। खिंचाव दें, जितना खिंचाव देंगे आसन उतना अच्छी तरह से होगा। अब श्वास निकालते हुए बिल्कुल कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकने का प्रयास करें। नी कैप्स को थोड़ा अंदर दबा के रखेंगे, जिससे आपके घुटने आगे ना आए। तब तक झुकते रहेंगे जब तक हथेलियां आपकी पृथ्वी पर ना आ जाएं।
या अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। हथेलियां पृथ्वी पर लगेंगी, माथा भी घुटनों से लगाने का प्रयास करना है। कमर आपकी खींची होगी और सीधी रहेगी। रोके कुछ क्षण। अब श्वास करते हुए धीरे धीरे ऊपर आ गए। ऊपर आकर भुजाओं को खिंचाव देने जगह से श्वास निकालते हुए दाएं बाएं से भुजाएं वापस। ठीक है सब? आनंद आ रहा है या किसी को चक्कर आ रहा है तो बता दो। रीढ़ की साइड बेंडिंग के लिए त्रिकोण आसन। त्रिकोण का मतलब ट्रायंगल, त्रिभुज। तो हमारे शरीर के 3 अंगों में, जंघाओं से, भुजाओं से और अपने धड़ भाग से मिलकर एक ट्रायंगल बनता है, तो इसलिए त्रिकोण आसन। पैरों में 3 फुट का फासला करना। मैट से ज्यादा फासला, चाहे तो थोड़ा पोजीशन अपने खड़े होकर चेंज कर सके। क्या आपके पैर मैट पे नहीं रहेंगे, पोजीशन आप ऐसे साइडवेज कर लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं से कंधों के स्तर पर उठा लें। दोनों हाथ कंधों के स्तर तक उठा लें। दाएं पैर को दाईं तरफ मोड़ लें। दायां पैर दाईं तरफ मोड़ लें। नजर सामने ही रहेगी, साइड पे नहीं देखना किसी ने। अब सांस निकालते हुए धीरे धीरे बगल से दाईं ओर झुकते जाएं। आगे से नहीं झुकना, बिल्कुल साइड से झुकने की कोशिश करें। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ कोशिश करना है आसन तक पैर के पीछे आ जाए, नहीं तो जहां तक ला सकते हैं आसानी से लाएं। बायां हाथ ऊपर, गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। गर्दन को घुमाकर ऊपर वाले हाथ की सेंटर उंगली को देखने का कोशिश करें। रीढ़ की लचक बनाने में जंघाओं को और नितंब की मांसपेशियों को, कमर को मजबूत करने में बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए मध्य में आए। दायां पैर सीधा करें, बाएं पैर को बाईं ओर मोड़ें। नजर सामने ही रहे, गर्दन नहीं घुमाएं। श्वास निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुकते जाए। कोशिश करें पैर के पीछे आसन तक आए, नहीं तो अपनी क्षमता अनुसार करें, घुटने ना मोड़े। दायां हाथ ऊपर सीधा बिल्कुल, गर्दन को दाईं ओर मोड़े। दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखिए, जो सबसे बड़ी उंगली है उसे देखने का प्रयास। श्वास करते हुए मध्य में आ जाए। बायां पैर सीधा, दोनों हाथ नीचे, पैरों में फासला कम करें। अब बैठ जाए। विश्राम आसन में आए, यानी बैठने वाले जब आसन करेंगे तो विश्राम आसन में बीच में आप पैरों में थोड़ा फासला रखें। पंजे दाएं बाएं लिटा लेना, स्थिति है। दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगलियां पीछे की तरफ और शरीर ढीला छोड़ें। आंखें बंद करके कुछ देर विश्राम करें, आनंद का। भद्र आसन, भद्र कहते हैं सज्जन पुरुष का, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा, और व्यवहार तब अच्छा होता है जब मन हमारा कंट्रोल में होता है, मन स्थिर होता है। तो ये भद्र आसन हमारे मन को स्थिर करने के लिए बहुत अच्छा। सबसे पहले दंड आसन की स्थिति में आना है। एड़ियां पंजे मिला लें, दोनों पंजे आगे की ओर तान लें, कमर सीधी रखें और दोनों हथेलियां बगल में रखें। बगल में रखें, उंगलियां आगे की तरफ। कमर को और खिंचाव दे ऊपर की ओर, पंजे आगे की ओर खींचे हुए, कमर ऊपर की ओर। यह है दंड आसन की स्थिति। अब दोनों टांगों को मोड़ें, तलवों को आपस में मिलाएं। दोनों टांगों को मोड़ें, तलवों को मिलाएं आपस में। श्वास निकालते हुए दोनों हाथों को पैरों से, दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लें, पंजों को ग्रिप कर लें हाथों के अंदर। और अब श्वास भरें, एड़ियों को अंदर की ओर दबाएं। पेरिनियम से बिल्कुल टच करने की कोशिश करें, दबाएं अंदर से अंदर। एड़ियां पेरिनियम से टच करने की कोशिश करनी है। अंदर पैर पीछे
एड़ियां मूलाधार से पेरिनियम से टच करने की कोशिश करनी है। घुटने जिनके उठने दबाए, थोड़ा दबाव दें, घुटनों को नीचे जमीन से लगाने की कोशिश करें। घुटने जमीन से लगे हुए और कमर में खिंचाव दें ऊपर, प्रभाव तभी आएगा। मन को स्थिर करने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फैट्स होते हैं इसके आसपास, यहाँ पर हमारी टेंशन जमा होती है, टेंशन रिलीज होती है इसको मन से, मन स्थिर बनता है। साथ ही हमारे श्रोणी प्रदेश के हमारे प्रजनन अंग जो होते हैं वो पुष्ट बनते हैं। लेडीज को मिडिल में कई प्रॉब्लम्स जो आती हैं उससे इसको करने से ठीक होती है। गर्भावस्था के लिए बहुत लाभदायक है। टांगे सीधी करें, फिर विश्राम आसन करें। पैरों में वास्ता, हाथ पीछे, शरीर रीढ़ के हमने कई तरह की मूवमेंट करी थी, आगे पीछे साइड में। एक मूवमेंट अभी रह गई, रीढ़ को घुमाना, ट्विस्टिंग करना। अगले आसन में यही मूवमेंट आएगी, रीढ़ की ट्विस्टिंग, घुमाओ। वक्र आसन, वक्र का मतलब होता है घुमाओ, रीढ़ को घुमाते हैं, इसलिए इसका नाम है वक्र आसन। एक बार फिर से दंडासन की स्थिति में आ जाए, एड़ियां पंजे मिले, हथेलियां बगल में, दाएं बाएं उंगलियां आगे। अब दाईं टांग को मोड़ें, इसका तलवा बाएं घुटने के साथ में रखें। बाईं भुजा, जो दायां घुटना मुड़ा हुआ है, उल्टा वाला हाथ उठाए ऊपर और बाएं घुटने के ऊपर से लाएं। दूसरी ओर की हथेली जमीन पे रखें या इस पैर का अंगूठा पकड़, दोनों तरह से करें। दूसरी तरफ से लाना है, चलिए बहुत अच्छा करो। रीढ़ में फ्लेक्सिबिलिटी बन रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। घुमाव आ रहा है, से लाएं। इसकी हथेली या तो पैर के साथ में रख लें या बाएं पैर का अंगूठा। गर्दन को बाईं ओर घुमाएं, गर्दन को बाईं ओर घुमाएं, पीछे से पीछे देखने का प्रयास करें। गर्दन भी घूमेगी पूरी, तब पूरी ट्विस्टिंग बनेगी। बहुत अच्छा, कई लोग तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, पोजीशन बहुत जरूरी है। वापस आ जाएं, एड़ियां पंजे मिला लें। अब यहां से आएंगे वज्र आसन की स्थिति में। पोजीशन देखना है ऐसे, पहले दाईं टांग को बाहर की तरफ से मोड़ना है और इसकी एड़ी पर बैठना है। मोड़े दाईं टांग से, अब बाईं टांग को मोड़े, उसकी एड़ी पर बैठना। अच्छा बनता है क्योंकि पेट की तरफ, पेट के अंगों की तरफ, ऊपर की तरफ ऊर्जा का मूवमेंट करती है। अर्ध उष्ट्र आसन, उष्ट्र कहते हैं ऊंट को, ऊंट का जैसे इस साइड पर कुबड़ होता है तो उस तरफ से वो वाली पोजीशन हमारी बनती है, जैसे उस कुबड़ पे दबाव पड़ो। घुटनों के बल खड़े हो जाए, घुटनों में थोड़ा सा फासला रखें, कंधों के दोनों हाथ कमर पर नहीं, दोनों हाथ नितंबों पर रख लें, नितंबों पर रख लें, हिप्स पर रख लें, इस तरह उंगलियां नीचे की तरफ। कोहनियां अंदर की तरफ होंगी, एक दूसरे के पैरेलल। कोहनियां बाहर की होना खुली हो, अंदर एक दूसरे के पैरेलल। अब गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे मोड़ें, सिर का पिछला भाग रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। गर्दन पे मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव करें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे झुकते जाए, यथाशक्ति पीछे झुकना है। जंघाएं, नितंब, कमर, सभी मांसपेशियां आपकी मजबूत बन रही है, पीठ मजबूत बनती है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है क्योंकि हार्ट पे खिंचाव आ रहा है। श्वास निकालते हुए वापस आ जाए, बैठ जाए वज्रासन। शशक आसन, शशक कहते हैं खरगोश को, खरगोश की तरह इसमें अंतिम स्थिति बनेगी और आगे झुकने वाला आसन है ये। घुटनों को ज्यादा से ज्यादा खोल लें, आगे झुकेंगे, रीढ़ पैर में ज्यादा स्ट्रेचिंग आएगी तो इससे भी स्ट्रेस रिलीज होता है, मन शांत होता है। दोनों हथेलियां
जंघाओं के बीच में पृथ्वी पर रखें। घुटने ज्यादा से ज्यादा खुले होने चाहिए। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। जिनको डिस्क की शिकायत है, कमर में ज्यादा दर्द रहता है, वो ना करें। नितंब एड़ियों से नहीं उठने चाहिए। हिप्स आपकी एंकल्स पे लगी होनी चाहिए। भुजाएं खिंची हुई, थोड़ी जमीन पर, चिन्ह लगाएं अपना मैट के साथ। भुजाओं में जितना खिंचाव होगा उतना आपको अच्छा प्रभाव इसका लगेगा। रीढ़ में उतना आपका खिंचाव बनेगा। रीढ़, कंधे सभी पे प्रभाव आता है। पेट के अंग, प्रजनन अंग सभी प्रभाव में। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। वज्रासन। पेट के बल लेट जाए। मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन की स्थिति एक बार बैठे बैठे देख लें। दोनों भुजाओं को मोड़ना है, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, और दायां कान उसके ऊपर ऐसे टिका। दोनों पैरों में फासला रहेगा और पंजे बाहर की तरफ खुले रहेंगे। पंजे ढीले नहीं छोड़ने, बाहर की तरफ खोल के रखेंगे, बाहर की तरफ। पीठ को आपको खुद आराम महसूस होगा। पीठ को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। उसके ऊपर दायां कान लगा लें। पैरों में फासला रहेगा पीछे और पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। मकर आसन यानी मगरमच्छ या घड़ियाल वाली। अब अगला करेंगे भुजंगासन, सर्प वाली स्थिति। जैसे सर्प अपना फन उठाता है। एड़ियां पंजे मिला लें, पंजे ताने, दोनों हाथों को छाती के दाएं बाएं ले, छाती के दाएं बाएं। कोहनियां खड़ी रहेंगी, कोहनियां खड़ी रहेंगी, माथा जमीन पर। जिनको पेट की अभी कोई सर्दी हो, पेट में सूजन हो या हर्निया वगैरह की शिकायत हो, वो इसे नहीं करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने धड़ भाग को ऊपर उठाते जाएं। नाभि से ऊपर के भाग को उठाना है। जंघाएं और नाभि तक का भाग दबा रहेगा, नाभि से ऊपर का भाग उठेगा। जितना उठा सकते हैं। रीढ़ थोड़ा, ये कोहनियां थोड़ी सी टेढ़ी भी रहेगी तब भी ठीक है। जंघाएं आपकी नीचे की ओर दबी हुई, धड़ भाग ऊपर उठा हुआ। नितंबों पर, पीठ पर प्रभाव आपको खुद महसूस होगा। बहुत अच्छा प्रभाव आता है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आते। मकर आसन में फिर से विश्राम करने। अब की बात, पहले दायां कान रखा था, अब बाएं। पैरों में फासला, पंजे बाहर की तरफ खुले। शलभ आसन, शलभ यानी टिड्डा। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब की बात, ठोटी चिन्ह जमीन पर रखनी है। दोनों हाथ बगल के दाएं बाएं। हथेलियां नीचे की तरफ रखनी है। हथेलियां नीचे की तरफ होंगी क्योंकि जब पैरों को उठाएंगे हथेलियों पे थोड़ा दबाव देते होगा। हथेलियों की पोजीशन नीचे की तरफ, थोड़ी जमीन पर, एड़ियां पंजे मिले हुए। श्वास भरते हुए हथेलियों पर थोड़ा दबाव देकर दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े उठाने का प्रयास। बिना घुटने मोड़े, बिना घुटने मोड़े दोनों टांगें पूरी उठानी है। देख लें इधर। उठाएं, एक बार वापस लाकर फिर से उठाएं। बहुत कम लोगों का उठ पा रहा है। लोअर बैक एक के लिए बहुत अच्छा है ये। श्वास निकालते हुए श्वास वापस आ जाए। दाएं कोहनी का सहारा लेकर पीठ के बल, पीठ के बल लेट जाए। पैरों में फासला रखें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियां ऊपर चिपका। विश्राम की स्थिति में रहेंगे। सेतु बंद आसन यानी पुल नुमा स्थिति शरीर की बनेगी। एड़ियां पंजे मिला लें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, पास मिलाएं। दोनों हाथों से टखने पकड़ लें।
दोनों हाथों से टखने पकड़ लें। नहीं पकड़ पा रहे जितना पास से पास आ रहे। और अब श्वास भरते हुए नितंबों को और पीठ को ऊपर उठाएं। हिप्स को उठाना ऊपर जितना उठा सके। हिप्स को और पीठ को ऊपर उठाना है। कंधे जमीन पे रहेंगे, सिर जमीन पे रहेगा। जितना हो सके उठाने का प्रयास करें। हिप्स रीजन की जो अतिरिक्त चर्बी है, फैट्स है, वो दूर होते हैं। श्वास निकालते हुए वापस ले आए। शवासन में विश्राम कर ले। हाथों पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेते। अर्ध हलासन, एड़ियां पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियां नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों टांगे धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 90 डिग्री तक ले। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा हो रहा है। दोनों टांगे 90 डिग्री तक लाएं और कुछ देर रोकने का प्रयास करें। हथेलियां जमीन पे ही लगी रहें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। कुछ सेकंड तक फिर से शवासन में विश्राम कर लें। लास्ट आसन आज का पवन मुक्त आसन। पवन मतलब वायु और मुक्त मतलब उसको फ्री करना। जो हमारे शरीर में दूषित वायु है उसका निष्कासन होता है। तो पेट की बीमारियों से, कब्ज वगैरह से छुटकारा रहे। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, घुटनों को ग्रिप करें। श्वास भरे और जंघाओं से जितना हो सके पेट को दबा लें। यथाशक्ति दबाना, गर्दन नहीं उठानी, बिना गर्दन उठाए जंघाओं से जितना हो सके पेट को दबा लें। पंजे खींचे हुए बाहर की तरफ। अब श्वास निकालते हुए गर्दन उठाएं और आगे तब तक लाते रहें जब तक नासिका दोनों घुटनों के बीच में ना आए। पेट के अंगों के लिए, पीठ की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा आसन। श्वास भरते हुए गर्दन वापस लाएं, श्वास निकालते हुए टांगें सीधी करें और शवासन में कुछ क्षण विश्राम करें। आंखें बंद रखें। आसनों के पश्चात जब कुछ क्षण शवासन में लेटते हैं बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। ब्लड का सर्कुलेशन, ऊर्जा का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है शरीर। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाएं कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठे, मुख सामने की ओर। अपने शरीर को खिंचाव दिया। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का अर्थ है श्वासों को विकसित करना, श्वासों को नियंत्रित करना। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर का तनाव कम करते हैं, समाप्त करते हैं, शरीर को शांत बनाते हैं, सहज बनाते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम ध्यान की अवस्था में जाना हमारे लिए बहुत ही सरल होता है। प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं सब मिलकर एक साथ। सर्वप्रथम कपालभाति प्राणायाम। किसी भी आध्यात्मिक आसन में बैठें, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन की स्थिति ले लें। कमर गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ घुटनों पे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा के रखें, आंखें बंद ही रखें। एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को कंठ तक भर लें।
फेफड़ों को फुलाएं। शक्ति से दोनों नासिका द्वार से, नॉस्ट्रिल से श्वास को शक्ति से बाहर फेंकें और पेट को अंदर की ओर खिंचाएं। पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें रीढ़ की ओर। शक्ति से श्वास को नॉस्ट्रिल द्वारा बाहर फेंकें और पेट की मांसपेशियों को संकुचित करें रीढ़ की ओर और पेट को ढीला छोड़ें। इसी प्रकार 30 से 35 बार इस क्रिया को दोहराएं, आंखें बंद रखते हुए। कपालभाति प्राणायाम से जुकाम, साइनसाइटिस, अस्थमाटिस के जितने भी कंसर्न हैं ये शरीर से दूर होते हैं। मन शांत होता है, तनाव मुक्त होता है। कपालभाति के माध्यम से पूरे शरीर का कायाकल्प होता है। मस्तिष्क के ऊपर ज्योति उज्जवल होती है। मस्तिष्क की सभी प्रणालियां, नसनालियां प्रभावित होती हैं, जिनसे इसका शोधन होता है और सभी शरीर के अंग शुद्ध होते हैं। शाम फिर से एक और आवृत्ति करें। श्वास को गहरा लंबा कंठ तक भरें, फेफड़ों को फुलाएं, शक्ति से दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें और पेड़ों के अंग को अंदर की ओर खिंचाव देते हुए पेट की मांसपेशियों को रीढ़ की ओर लगाने का प्रयास करें, फिर ढीला छोड़ें। बारंबार इस क्रिया को गिनती के साथ करें। शांत। एक दो गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों को सामान्य करें। अनामिका उंगली से बाएं नासिक को बंद कर लें। अंगूठा हटाते हुए दाएं नासिक से श्वास को धीरे धीरे से बाहर निकालते हुए पेट को अंदर खिंचाएं, फिर पेट ढीला छोड़ें। इसी प्रकार दाईं ओर से भी श्वास को भरना प्रारंभ करें। दाएं नासिक को बंद कर लें और उंगली को हटाते हुए बाएं नासिक से श्वास को धीरे धीरे से बाहर निकालते हुए पेट को अंदर खिंचाएं और अंत में पेट ढीला छोड़ें। नाड़ी शोधन की ये एक आवृत्ति है, 5 आवृत्तियां अपने आप से करें। श्वास को बाईं ओर से भरें, दाईं ओर से बाहर निकालें, फिर दाईं ओर से भरें और बाईं ओर से बाहर निकालें। जो पुराने साधक हैं, जो इसका अभ्यास जानते हैं, वो इसको 1 और 2 के अनुपात पे भी कर सकते हैं। अर्थात जितना समय आप श्वास को भरने में लें, उससे दुगना समय आप श्वास को निकालने में लें। जिन साधकों का अभ्यास नया है, वो साधक इस अभ्यास को 1 और 1 के अनुपात में ही करें। अर्थात जितना समय श्वास भरने में लगे, उतना ही समय श्वास को बाहर निकालने में लगे। 2 आवृत्तियां स्वयं से खुद करें, आंखें बंद करते हुए, बिना इधर उधर देखे। बाएं से श्वास भरें, दाएं से श्वास को बाहर निकालें, दाएं से श्वास को भरें, बाएं से श्वास को बाहर निकालें। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को विराम देता है, तनाव को कम करता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है, शरीर की सभी नसनाड़ियों में ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। जागृतिक अवस्था में रहने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है।
शांत। दोनों हथेलियां घुटनों पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। शीतली प्राणायाम। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें, आंखें बंद रखें, जिह्वा को बाहर निकालें, साइडों से जिह्वा को मोड़ते हुए जिह्वा की नली बनाएं। नली बनाते हुए इस ऊर्ध्वा नली से धीरे धीरे से ठंडक का एहसास करते हुए श्वास को गहरा लंबा कंटक भरें। जिह्वा को मोड़ते हुए श्वास को गहरा लंबा ठंडक का एहसास करते हुए गले तक भर लें। जिह्वा को मुंह के अंदर ले लें, मुंह को बंद कर लें। दोनों नासियों द्वारा श्वास को धीरे धीरे से अधिक बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर खिंचकाएं। फिर पेट ढीला छोड़ें। ये इसकी एक आवृत्ति है। इसी प्रकार 5 आवृत्तियां अपने आप से करें। पहले इसकी इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ घुटनों पे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। पहली एक एक उंगली अपने चक्षु पे लगाएं, मध्यम उंगली नौसल पे, बाकी 2 उंगलियां होठों के ऊपर और नीचे, कोहनियां पृथ्वी के समानांतर, मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन पट्टी ऊपर उठा के रखें। बगले की गुंजन करनी है आपको। जब श्वास को पूरी तरह से भर लेंगे, उसके बाद जब आप श्वास बाहर निकालेंगे तो आपने हमिंग करनी है। भरने की गुंजन के साथ आपने अपनी श्वास को बाहर निकालना है। अब दोनों अंगूठों को कानों के अंदर रख लें, कोहनियां पृथ्वी के समानांतर, श्वास को गहरा लंबा भरें कंठ तक और भौरे की गुंजन से श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को खिंचवाएं, फिर ढीला छोड़ें। श्वास भरें, अपने आप से करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ब्राह्मणी प्राणायाम मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। ब्राह्मणी प्राणायाम से मस्तिष्क के सभी दोष दूर होते हैं। जिन्हें माइग्रेन की शिकायत या आधे सर दर्द का कोई पीड़ा हो, इस प्राणायाम के माध्यम से अपने सर दर्द को या माइग्रेन के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये प्राणायाम आध्यात्मिक तौर से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान की अवस्था में जाने के लिए बहुत ही कारगर प्राणायाम सिद्ध हुआ है। कुछ पल ध्यान करते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा के रखें। ध्यान को सभी जगहों से हटा के दोनों भुवों के बीच में भ्रूमध्य में केंद्रित करने का प्रयास करें। आती जाती श्वासों को देखें मन की आंखों से। श्वासों के साथ जुड़े रहें, अपने साथ जुड़े रहें श्वासों के माध्यम से। आती जाती सभी श्वासों को मन की आंखों से देखें। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं।
मन में सकारात्मक विचार लाएं, नकारात्मक विचारों को अपने आप से अलग करते चले जाएं। धीरे धीरे अपने आप को अपने विचारों से भी अलग कर दें। आंखें बंद रखते हुए ईश्वर का ध्यान, प्रभु का ध्यान, गुरुवर का ध्यान करें। ऐसा अनुभव करें कि आपके सामने ईश्वर की एक भव्य मूर्ति है, मन की आंखों से जिसे आप देख रहे हैं और मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। मन की आंखों से ईश्वर को नमन करें। अपने अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के कार्यक्रम के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें। एक लंबी ओम की ध्वनि मेरे साथ, तत्पश्चात वैदिक प्रार्थना। ओम की ध्वनि के लिए श्वास भरें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठें। दोनों हाथों को परस्पर जोड़ें। इसमें यौगिक ऊर्जा उत्पन्न करें। इस यौगिक ऊर्जा को अपने चेहरे पे, शरीर के दाएं बाएं धारण करें। आंखें बंद ही रखें। आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्ति करते हैं, परंतु उससे पहले एक संकल्प मेरे साथ आप मिलकर दोहराएंगे। पहले मैं बोलूंगा, आंखें बंद कर लें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू वेरी मच। We're going to close the session. Thanks for all the participants. Thank you so much, sir, for this grounding and uplifting session. Your presence has not only guided our moments, but has also stilled our racing thoughts. You have reminded us that yoga is not a destination, but a daily return to balance, to self, and to silence. I now invite our director, sir, and faculty coordinator, Muskan ma'am, to present a memento to our guest as a token of deep appreciation.
To formally conclude today's celebration, I call upon Director Sir to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. It has indeed been a true yoga exercise that we did today. पिछले 2 सालों में भी हमने योगा किया, पर कभी कुर्सी पे बैठ के किया और कभी आरामदायक तरीके से योगा किया। इस बार जब योगा के लिए ट्रेनिंग का हम सोच रहे थे, मेरे दिमाग में कक्कड़ साहब और रमोत्तरा साहब का ध्यान आया कि इनको बुलाया जाए, क्योंकि इनके थ्रू हमने योगा सीखा हुआ है। और जिस सोसाइटी में हम रहते थे, we used to do yoga together। तो जिस तरीके का योगा आज उन्होंने करवाया, यही उनका तरीका है करवाने का। और रोज सुबह हमारी धर्मपत्नी जो है वो उस योगा ग्रुप की पार्ट थी। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनर्स। उनके साथ ही इन्होंने योगा सीखा और फिर आगे योगा सिखाया लोगों को। तो आज भी मैं जब सुबह घर छोड़ के आता हूँ इधर के लिए, तो वो आधा पौना घंटा योगा जरूर करती हैं। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हर लाइफ। और एक चीज़ मैंने देखा इनके साथ कि अगर आप इनके साथ जुड़े रहते हैं तो योगा बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। कक्कड़ साहब की तरफ अगर आप देखें तो उनके चेहरे पे योगा करने के बाद जो नूर रहता है, और रमोत्तरा साहब के चेहरे पे जो नूर रहता है, वो योगा जो बार बार करते हैं वो अपने सोल के साथ कनेक्ट हो जाता है। और सोल के साथ कनेक्ट होने से आपकी एनर्जी से आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है दूसरों के ऊपर। तो जो लोग योगा के साथ जुड़े हुए हैं वो पॉजिटिव तो रहते ही हैं, और वो पॉजिटिविटी फैलाते भी हैं दूसरों के बीच में, जैसा आज आपने देखा होगा। प्रॉब्लम क्या है आज के समाज में, हम अपनी इतनी बिजी लाइफ के अंदर रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम योगा करते हैं तो वो सिर्फ योगा डे के लिए या नाम मात्र के लिए करते हैं। पर जो लोग योगा के साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग इसको रेगुलरली कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें तो दिस इज अ बून फॉर अस। हमारी संस्कृति ने, हमारे गुरुओं ने इसको स्टार्ट किया था और आज वर्ल्ड ने इसको अपनाया। तो ये एक ऐसी चीज़ है योग, जो भारत से उत्पन्न हुई और दुनिया को दी गई। तो इसलिए अब इसको हम इंटरनेशनल योगा डे की तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मेरा एक मैसेज जो हमारे स्टूडेंट्स को है वो ये है कि आप भी प्रोफेशनल लाइफ में अपने बिजी होंगे और कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्ट्रेस है, कल को काम करने का स्ट्रेस है, पर अगर हम योगा करें तो ये एक स्ट्रेस बस्टर की तरह से हमें काम आएगा और हमें उन मेडिसिन से दूर रहेगा जिसकी चपेट में हम बड़ी जल्दी आ जाते हैं। मैंने ये देखा कि बहुत छोटी उम्र में, 17-18 साल की उम्र में भी आजकल स्टूडेंट लाइफ में डायबिटीज हो रही है लोगों को। स्कूल में या कॉलेज में ही बच्चों को हार्ट अटैक होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि हमारे जो देश में बीमारियां फैल रही हैं और जो खर्चा मेडिसिन के ऊपर हो रहा है, उसकी वजह से एक फिट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई। और फिट इंडिया का मतलब ये है कि आपके जैसे जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, जिनके कंधों पे कि आगे देश का भार आना है, उनको अभी से ही फिटनेस का ध्यान करना है। जब हम आपकी लाइफ में थे तो फिट रहते थे, पर जैसे जैसे कुर्सी के ऊपर बैठे तो कुर्सी ने ही हमको पकड़ना शुरू कर दिया। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमसे ये गलती हुई कि हमें इनके जैसे गुरु पहले नहीं मिले। और कहीं ना कहीं आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो कहीं थोड़ी बहुत बीमारी हमें भी लगी हुई है। पर अगर इस योग को हम अपने लाइफ का एक पार्ट बना लें तो इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, थोड़ी बहुत जो मेडिटेशन है जिससे कि आप अपने आप से जुड़ सकते हैं, वो जरूर करना चाहिए। ध्यान आधा घंटा करें और अपने से बात करें, अपनी सोल से बात करें, तो आपकी सोल अंदर से आपको बताती है क्या सही है और क्या गलत। और जब वो इंट्रोस्पेक्शन सोल के साथ होता है, मेरे हिसाब से हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। और हमारा
वो इतना अच्छा रहता है कि वो दूसरों को भी प्रभावित करता है। तो मैं आज यही कहूँगा, आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे साथी लोग इधर आए और दोबारा से हमें जुड़ने का मौका मिला। मैंने जब भी कक्कड़ साहब को, मथुरा साहब को रिक्वेस्ट करी, वो हमेशा आए। आज उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर आपका रेफरेंस मिला तो हम चल पड़े, पर हमें ये नहीं पता था कि आप यहाँ पे हो इस समय। तो आके उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं ही हूँ यहाँ पे, तो दे वर वेरी हैप्पी। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि इतने सालों बाद हम फिर दोबारा मिले और हम नेबर्स रहे हैं एक टाइम पर। और समाज में मैं आज भी जुड़कर लोगों से इसलिए रहता हूँ कि समाज से ही हमें चीज़ें मिलती हैं, समाज को ही हमें चीज़ें देनी है। कुछ देर के लिए हम किसी भी संस्थान में काम करें, उधर से चीज़ें हमें मिलती भी हैं, हम वापस देते भी हैं। पर समाज में आपने हमेशा रहना है, बेशक वो यहाँ पे हैं आप या किसी और जगह पे जाएं, उससे जो चीज़ लें उसको उससे ज़्यादा बढ़कर वापस करें। Then it is rightly said that you are a social animal and you are a social human being. तो योग आज एक बहाना भी था, एक तरीका भी था कि हम साथ बैठे और थोड़ी देर के लिए हमने अपने शरीर की तरफ ध्यान दिया, अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दिया और योग लगाया। यही योग का मतलब भी है कि अपनी आत्मा के साथ आप बात करें और अपने आत्मचिंतन करें कि हम आज की डेट में क्या करने जा रहे हैं और इस समय हम किस तरीके की पर्सनालिटी हैं और बेहतर कैसे बन सकते हैं आगे। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना आभार प्रकट करूंगा मथुरा जी को, कक्कड़ साहब को, मैडम को कि आपने समय निकाला और आप आए हमारे पास यहाँ पर। और आप सबको भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आप भी इधर आए टाइम निकाल कर और साथ मिलकर हम बैठे, मिलकर हमने योग लगाया। और आज जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये प्रण करेंगे कि थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपने आप का ध्यान जरूर करेंगे। हमेशा ये बोला जाता है कि आप अपने लिए दिन में कम से कम 2 घंटे निकालें, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर को और 1 घंटा शाम को, जब आप वो समय अपने आप को ही दे सकें, हर चीज से दूर, गैजेट से दूर, म्यूजिक से दूर, लाइफ की परेशानियों से दूर, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके अंदर मेंटल पीस आना शुरू होगा। तो इन शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा यहाँ पर और विश यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। थैंक यू।